सो मैं छोटा सा एक कीर्तन करूँगा और उसके बाद फिर हम श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे, भगवद गीता के बारे में बात करेंगे। और पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना समय निकाल के आज हमारे मंदिर में आए और इस अवसर जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें आप भाग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Vishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Astotar Satashi Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajikacharya Astotar Satashi Srimad Nityalila Pravista Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada ki ISKCON Guru Brind ki Ananta Koti Vaishnav Brind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री मथुरापुरी धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जमुनामय की गंगा देवी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सामवेद भक्त वृंद की हरि नाम संकीर्तन की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की शील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक्स एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत गीता की और प्रेमानंदी all glories unto the assembled devotees, all glories unto the assembled devotees, all glories unto the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, Gaur Premanandi, Hari Hari Gaur. Thank you very much once again for coming to this evening program. So I was thinking, Bhagavad Gita is 700 verses. कौन से verse पे बोलूं मैं? Then I thought, I was praying very hard. How do I say? Then, before I get into Bhagavad Gita in depth, it will be improper for me if I do not glorify ISKCON founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada, who actually introduced Bhagavad Gita to the whole world. To the whole world. And I wish that while I am alive, the Indian government will recognize his contribution to the whole world. Srimati Narendra Modi ji has somewhat recognized his contribution, but I think he deserves much more. Okay. In terms of international cooperation and participation, he spread the Bhagavad Gita to the entire world. Today in ISKCON, we have people who have dedicated their lives to Krishna Bhakti, and they come from various backgrounds. I remember initially when I became a devotee in 1979, and the first trip I made overseas at that time was in 1982 to the US. And when I saw people of all caste, color, creed chanting Hare Krishna, amazing it was to see a Chinese-bodied person chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. It was amazing, wasn't it? You know what that proves? That people of different types of bodies, black, white, curly haired, all types, you know why they are able to chant Hare Krishna? Because Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshu Arjuna Tisthati. Krishna says in the Bhagavad Gita that I am sitting in the heart of every living entity. Living entity does not mean only human beings. Living being means all types of species. And in the Bhagavad Gita also it is very clearly stressed by Lord Sri Krishna that how many types of species are in this material world. There are 8.4 million types of species in this material world. 84 लाख योनि जिसको हम कहते हैं, हम गिन भी नहीं पाएंगे 84 लाख कौन सी योनि है. हम शुरू करें तो शायद हम लोग 40-50 में अटक जाएंगे, है ना. किसी ने सोचा है क्यों इतनी योनियां हैं? Why are so many types of bodies? 8.4 million types of bodies. Why did Lord Krishna make them so much in this material world? क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान 3 गुणों के बारे में बात करते हैं. 3 modes of material nature. वो 3 गुण जो है वो है सतगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो हर एक जीव जो हर एक जो योनि है, कोई भी योनि में
ये जो 3 गुण है उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होता है। कोई कोई एकदम 100% सद्गुण में होंगे, कोई कोई 50% सद्गुण में होंगे, 20% रजगुण में होंगे और रिमेनिंग तमोगुण में होंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वेरियस, दैट कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली 8.4 मिलियन स्पीशीज। द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम्स टू 8.4 मिलियन। इसीलिए 84 लाख योनि है। और हर एक व्यक्ति जो है, गीता में बताया गया है कि परीक्षा हर एक व्यक्ति की कब होती है? जब उसका शरीर छोड़ने का समय आता है। कि सारा जीवन हम अगर वेस्ट ऑफ टाइम में बिता देंगे तो अंत में परीक्षा आएगी, वो हम फेल करेंगे। क्योंकि भागवत गीता में ही श्री कृष्ण ने बोला है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंत्य कलेवरम तम तम एवाइति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता। कि एट द एंड ऑफ लाइफ the collective memory of every living entity will determine the next birth। कि आपका जो मेमोरी में क्या सब भरा है वो डिटरमिन करेगा कि वो 8.4 मिलियन स्पीशीज में आप कहां जाएंगे। Let me be very open about it. Supposingly if someone is very much attached to sex life, तो भगवान कहते हैं यार मनुष्य जीवन में तुम सेक्स लाइफ इतना नहीं एंजॉय कर पाएगा, मैं तुमको ऐसा शरीर देता हूं जहां तुम बेहद दिन भर कर सकते हो और बेशरम रास्ते पे कर सकते हो। Look at so many birds, so many other creatures, when they get into sexual activity, do they have any shame? No. So if you are a human being with such tendencies, the Lord Krishna at the end of your life will say, all right, I know what is filled out here, I will give you the appropriate body so you can fulfill your desires. So it is very important that how during the entire lifetime we practice Krishna consciousness very seriously. And Krishna consciousness सारे विश्व में हमारे प्रभुपाद जी ने फैलाया है। प्रभुपाद के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, because he is our hero. Before Krishna becomes our hero, our hero is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So Prabhupada is a true Vaishnav. वैष्णव का मतलब क्या होता है? गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, है ना? That one who knows the problems of others and tries to help them is a true Vaishnav, isn't it? और वो दूसरे का दुख देखता है तो वैष्णव को पीड़ा होती है कि ये व्यक्ति इतना दुखी है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। किस प्रकार से? आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसकी मदद करता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इन द बैटलफील्ड अर्जुन जब लड़ने गया तो टोटली कंफ्यूज था, ही कुडंट मेक आउट व्हाट टू डू, और श्री कृष्ण को उसको पूरे रूप से उसको समझाना पड़ा। लेकिन हम जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, हम भी रोज अपने दिमाग में बैटल्स चलते रहते हैं, है ना? वो तो एक्चुअल बैटल था, बट फिगरेटिव बैटल्स हमारे माइंड में रोज चलते रहते हैं, कोई ना कोई तरह का बैटल चलता है। तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं? वी हैव टू टेक द टीचिंग्स ऑफ द भागवत गीता टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। यही वो सॉल्यूशन बुक है जहाँ सब सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव थे जो चाहते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करूं। खास तौर पे मैं एक और बात बताना चाहता हूं, स्पेशली टू आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कभी कभी हमारे हिंदू कम्युनिटी में ये कंफ्यूजन होता है कि भगवान कौन है ना? बहुत कंफ्यूजन है। कोई बोलता है ये भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान है। हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है उसको बोलेगा कि तुम्हारे हिंदू में इतने सारे भगवान कैसे हैं? हमारी फिलॉसफी में एक ही भगवान है। बाय डेफिनेशन गॉड शुड बी ओनली वन, इजंट इट? द मोस्ट पावरफुल, सभी क्वालिटीज जिसमें अधिक मात्रा में हो उसको भगवान कहते हैं। तो हमारे हिंदुइज्म में ये सब कैसे है? तो लेट मी क्लैरिफाई व्हाट दिस इज। मैं जब इस्कॉन में आया था तो मेरा फर्स्ट प्रश्न ये था कि भगवान कौन है, तो मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तो हमारे उस समय एक सन्यासी थे गौरकेशव प्रभु, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था
कि देखो भगवान तो एक ही है, दूसरे जो सब है वो देवी देवताओं हैं। जिस तरह हमारे देश में हमारा एक प्राइम मिनिस्टर है और बहुत सारे मिनिस्टर है ना। सो अलग अलग जो मिनिस्टर जो है उसको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, राइट, एंड दे रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, इजंट इट। तो जिस तरह हम कहते हैं कि अच्छा लक्ष्मी जी को देखो, शी इज द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, सरस्वती के देखो, शी इज द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। तो भगवान की जो कैबिनेट है उसमें 33 करोड़ मिनिस्टर्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अनगिनत लेवल्स हैं। और जो नंबर 1 पोजीशन पे जो बैठा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। ये जितने देवी देवता है दे ऑल रिपोर्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। आप पूछेंगे भगवान ने इतनी बड़ी कैबिनेट क्यों बनाई? तो भगवान और जो भौतिक संसार का प्राइम मिनिस्टर है उसमें फर्क क्या है मैं बताऊं। ये जो भौतिक संसार का प्राइम मिनिस्टर है उसको ये सब हेल्प चाहिए, ये असिस्टेंस, अलग अलग पोर्टफोलियो संभालने के लिए। श्री कृष्ण को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। बाय डेफिनेशन इज गॉड इज क्वाइट केपेबल टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मंडेन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन वो क्यों देवी देवताओं को देता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान हम तुम्हारी सेवा में लगे, तो भगवान उसको अलग अलग पोर्टफोलियो देता है, लेकिन उसके सुपरविजन के नीचे वो काम करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड नरसिंहदेव, these are the supreme personality of Godhead. Krishna has taken many incarnations, as you know, अलग अलग। वामन देव है, बहुत सारे अवतार लिए भगवान ने अलग अलग टाइम पे। भगवान गीता में कहते हैं, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान कहते हैं मैं क्यों इस दुनिया में आता हूँ, मैं क्यों मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के इस भौतिक संसार में क्यों आता हूँ? मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि तुम सब मुझे भूल गए हो और इस भौतिक संसार में दुखी हो रहे हो फोकट में, और तुमको नहीं मालूम कि किस तरह इस दुख का अंत करना। तो इसीलिए मैं आता हूँ बारंबार तुमको वापस ये समझाने कि छोड़ो ये भौतिक संसार, चलो वापस मेरे साथ मेरे दिव्य संसार में, जहाँ कोई भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा, मृत्यु कभी नहीं होगी, तुम सनातन हो एवर, है ना, और वहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम सब मुझसे रूठ कर कोई कारण इस भौतिक संसार में आ गए हो। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात भी समझाते थे। जब प्रभुपाद स्टार्टिंग में बहुत प्रचार करते थे सब वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो जो प्रभुपाद समझाते थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, वो हमारा असली घर है, यहाँ तो हम खाली भगवान से रूठ कर आ गए हैं। वो भी मैं बताऊंगा क्यों रूठ कर आ गए हैं। रूठ के नहीं आए हैं, वी वांटेड टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा। वो एक है हमारे एज ए लिविंग एंटिटी, वी हैव दैट minute independence to choose, and we chose to come here to enjoy separately from the Supreme Lord Krishna. But then there are so many conditions out here in this material world that material nature actually rules us. You cannot go against material nature. Devi hi esha gunamayi mama maya duratyaya. Lord Krishna says, under my direction this material nature is functioning. जिस तरह फिजी में अभी बहुत धूप निकल रही है, isn't it? It's very humid. हम कुछ कर सकते हैं ना, एयर कंडीशन ऑन कर सकते हैं, है ना। मुझे हाल ही में भी एक व्यक्ति मिला था सिंगाटोरा में, चाइनीज है, जंगल में रहता है अंदर। मैंने कहा तू आया कहाँ से? बोलता है सिंगापुर से आया। सिंगापुर जैसी देश छोड़ के फिजी के जंगल में क्या कर रहा है तू? तो उसने कहा I can't tolerate the air conditioning. In Singapore you can't live 1 minute without air conditioning. This is so nice out here and healthy. तो भौतिक संसार के अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना। सो भगवान हमको समझाते हैं कि मैं इसीलिए इस संसार में आता हूँ कि तुमको वापस समझाओ कि इस दुनिया में क्यों दुखी हो रहे हो।
है ना, चलो वापस मेरे धाम। भगवान के दिल में उतनी दया है हमारे प्रति, इसीलिए वो आते हैं, नहीं कि यहाँ आने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो प्रभुपाद के दिल में ये दया थी कि भौतिक संसार के लोग भगवान को नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, क्योंकि प्रभुपाद के गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उसने श्रील प्रभुपाद को एक इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या दिया था कि अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे इकट्ठा होए तो दो काम करना। एक तो पाश्चात्य जगत को समझाना कि श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, क्योंकि वो भगवान के बारे में बहुत जानते नहीं है। और दूसरा कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हो तो तुम शास्त्र जो हमारा है उसको अनुवाद करना संस्कृत से अलग अलग भाषा में, कि दुनिया के हर एक प्राणी उसको पढ़ के समझ कर ज्ञान हासिल करे और इस भौतिक संसार जो एक नर्क के समान है उससे निकल के वापस भगवान के धाम चले जाए। सो प्रभुपाद डिड दिस। ऐसा कार्य आज संसार में किसने किया है? अब इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, who is that one person who gave up his life at the age of 70, traveled the entire universe 10 times in 10 years and spread Krishna consciousness and made 10,000 people devotees? और 108 मंदिर बनाए थे 10 साल में, और जेब में एक सेंट भी नहीं थी। Only a pure devotee of the Lord can do it, isn't it? भगवान का जो प्योर डिवोटी होता है, भगवान उसकी बात सुनता है। वो that is the secret। मैं खाली आपको बता दूं, प्रभुपाद जब शुरू में अमेरिका गए थे तो बहुत तकलीफ उठाई थी, बहुत तकलीफ उठाई थी। किसी को जानते नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे। Used to stay 26 Second Avenue in New York। वहाँ पे सब ड्रग एडिक्ट्स रहते थे, एक कमरे में, 2 कमरे में। प्रभुपाद उसके संबंध रहते थे and used to preach them। कभी कभी वो बहुत हाई रहते थे तो उसको घर से बाहर निकाल देते थे, वो भी रात को। नवंबर का विंटर, न्यूयॉर्क में नवंबर इज रियल विंटर, उसको निकाल देते थे। तो भगवान ने बहुत अलग अलग तरह से श्रील प्रभुपाद की परीक्षा ली कि ये मेरा सच्चा भक्त है कि नहीं, इसको डज ही हैव अ रियल डिजायर टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। अलग अलग प्रकार से उसको टेस्ट किया, लेकिन भगवान ने अंत में हार मान ली, नहीं ये बंदा मानने वाला नहीं है, चलो इसको हम। उसके बाद में प्रभुपाद ने जो बोला वो होता था। That is the reality. So people should know about Prabhupada, and now let's talk about the books. Okay. Now जैसा आप जानते हैं, वेद जो ग्रंथ है, that is the most ancient scripture. That is accepted. अगर आप गूगल करेंगे that which is the most ancient scripture in the world, in the history of the world, it is the Vedas. But the Vedas are so vast, है ना। पहले तो 4 वेद है, उसके बाद कितने उपनिषद है, फिर पुराणस है। इसको एक जीवन में भला एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? पढ़ना तो छोड़ो, उसको समझ में कैसे आएगा? वो संस्कृत में लिखा है। तो प्रभुपाद डिड दैट वंडरफुल टास्क ऑफ कन्वर्टिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स इनटू मेनी लैंग्वेजेस। फर्स्ट ही डिड इट इन इंग्लिश। नाउ आप देखेंगे कि वेद इतने सारे हैं और इंसान इसको एक जन्म में पढ़ नहीं सकता है, तो उसका एसेंस क्या है? द एसेंस ऑफ ऑल द वेदस 2 ग्रंथों में है। देयर आर 2 स्क्रिप्चर्स व्हिच इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदस। उसमें से पहला जो ग्रंथ है वो है भागवत गीता। सो इंग्लिश में बोलते हैं भागवत गीता इज द ग्रेजुएट स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। इट्स अ ग्रेजुएट स्टडी। बेसिक जो मैटर्स है वो भागवत गीता में डिस्कस किए गए हैं। टाइम, मटेरियल एनर्जी, कर्म, बेसिक सब्जेक्ट्स मैटर्स डिस्कस किए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस है उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं या भागवत पुराण। और वो भागवत पुराण में क्या है? भागवत पुराण में अलग अलग प्रकार से समझाया गया है कि भगवान इस भौतिक संसार का कैसे निर्माण करता है, उसका नाश कैसे करता है, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, उसकी सब लीलाएं का वर्णन किया गया है भागवत में।
भगवान के जो सखत भक्त हुए हैं, लाइक प्रहलाद, लाइक ध्रुवा, उसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। सो ये दो ग्रंथ अगर कोई भी जीव सिंसियरली पढ़ेगा इस युग में, इस समय में, उसको गारंटीड है, और साथ में भगवान का नाम लेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका गारंटीड है कि जब अंतिम घड़ी उसका आएगा ना तो उसको भगवान याद आएंगे और आप अपने जीवन भर भक्ति करनी है। मैं अब थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा कि भागवत गीता में क्या क्या एसेंशियल सब्जेक्ट्स है। मैं प्रभुपाद ने जो लिखा है वो आपको सुनाता हूँ। ये प्रभुपाद की जो गीता है इसको भागवत गीता एज इट इज कहा जाता है। मालूम क्यों एज इट इज? क्योंकि देयर आर ऑलमोस्ट 700 ट्रांसलेशन ऑफ द भागवत गीता इन द वर्ल्ड टुडे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव translated the Bhagavad Gita, unfortunately, but I have to say, they had done it out of their own imagination. Now, हम लोग सब जानते हैं कि एक जो इंसान जो है उसमें limitations है। We have 4 defects. Every living entity has 4 defects. What is the first defect? We have a cheating propensity. यहाँ कोई नहीं बैठा है ऐसा बोलेगा मेरे में चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं, थोड़ी बहुत तो होगी सब में, है ना? Sometimes we may cheat not at the expense of others, but still it's cheating, है ना? What is the second defect? Imperfect senses. हमारे जो इंद्रियां हैं वो imperfect है. We all accept that. हमारे perfect senses नहीं है, imperfect है. Third, we make mistakes. यहाँ कोई बैठा है तो कहेगा मैंने कभी जीवन में गलती नहीं की. That's the third. And the fourth one, जोर से, to become illusion. The fourth one is we all are illusion. If we were not illusion, then what the hell are we doing in this material world? That's the reality. Because we are illusion. माया के प्रकोप के नीचे हम दब के इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्त करने आए हैं भगवान से अलग. That's the reality. So we have these 4 defects. So anyone with these 4 defects, if they translate Bhagavad Gita, what do you think the outcome is going to be? Do you think it's going to be absolutely perfect? No. Then you might say, how come Bhagavad Gita as it is, which Prabhupada translated, is perfect? And I will tell you how. भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि ये जो भागवत गीता का ज्ञान है ना वो किस तरह प्राप्त होता है. हाउ डू वी रिसीव नॉलेज? यू हैव टू रिसीव नॉलेज इन एवं परंपरा प्राप्तम. इट कम्स इन परंपरा. नाउ आउट ऑफ दिस 700 people who have translated Bhagavad Gita, hardly 1 or 2 have actually come in परंपरा. वो अपने दिलो दिमाग से वो ट्रांसलेट करते हैं. जो 1 or 2 have translated that there was no personality in like अर्जुन, कोई बैटल नहीं हुआ था, ये हुआ है, वो अपने दिलो दिमाग से ट्रांसलेट करते हैं. बट आज we know there is Kurukshetra in India. There is ample proof out there of how Krishna performed various pastimes in various places. So the important thing is Prabhupada actually came in a parampara which is one of the key 4 Vaishnava paramparas. There are 4 Vaishnava paramparas that are called bona fide, and one of them belongs, Prabhupada belongs to that parampara, and that's called it comes from Brahma ji. पहला ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया था. ब्रह्मा ने फिर वो ज्ञान नारद जी को दिया था. नारद जी ने फिर वो ज्ञान व्यासदेव को दिया था. व्यासदेव ने फिर वो ज्ञान मध्वाचार्य को दिया था. इस तरह इट केम इन लाइन, इन डिसिप्लिक सक्सेशन उसको बोला जाता है, गुरु परंपरा. वो ऐसे ऐसे आते आते 500 years ago it came to Sri Chaitanya Mahaprabhu. ISKCON accepts Chaitanya Mahaprabhu as an incarnation of God. If you really study his lila and all, you'll see Chaitanya Mahaprabhu was not an ordinary soul. He was an incarnation of Krishna who came 500 years ago. Then Chaitanya Mahaprabhu to Ishwarapuri, then Ishwarapuri to many other karte karte. Then it came to Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur was a great magistrate in Jagannath Puri. Then at the end of his life he gave up all that and took up to Krishna consciousness 100% and बहुत प्रचार किया. He was a great saint in our Guru Parampara.
और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के बाद उसका गौर किशोर दास बाबा जी, ही वॉज ऑल्सो वेरी सेंटली पर्सन, वेरी रिनाउंस्ड। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का जो बेटा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसको वो ज्ञान आया। एंड देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। सो यू कैन सी प्रभुपाद अपने दिलो दिमाग से वो नहीं किया है, ही हैज रिसीव्ड नॉलेज इन दी करेक्ट लीनियज, गुरु परंपरा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि ज्ञान अगर गीता का हासिल करना हो, देन यू गॉट टू बिलोंग टू द बोनाफाइड गुरु परंपरा, अदरवाइज यू विल बी चीटर। आज मैं गर्व के साथ विद ऑल ह्यूमिलिटी कह सकता हूं कि प्रभुपाद की गीता इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड distributed Gita in the entire world. We have done many tens of millions of Gita distributed in so many languages, including Swahili, and changed the lives of so many people. So that is the power of the Bhagavad Gita. So the knowledge should come in a Guru Parampara, and that is how Prabhupada came. So Prabhupada's Gita, when you read it, you'll find it very simple to understand. Because उसने क्या किया है, that जितने भी संस्कृत के श्लोक से उसको लिटरली ट्रांसलेट किया है कि वो संस्कृत शब्द का मतलब क्या है। उसके बाद में कंप्लीट जो श्लोक है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है, और उसके बाद में पर्पस दिए है। यू नो, ही हैज गिवन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू व्हाट लॉर्ड कृष्ण इज ट्राइंग टू से। प्रभुपाद को रात रात को जग जग कर ये शास्त्र अनुवाद किए संस्कृत से अंग्रेजी में। You know, and if you read Prabhupada's books, especially Bhagavad Gita as it is, you will feel the impact. Why there are millions of devotees in the world coming from different backgrounds are all reading Bhagavad Gita as it is, because one who reads Bhagavad Gita as it is and who chants the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। दो ही चीज करना है, भागवत गीता पढ़ना है और भगवान का नाम लेना है। नारद जी ने बताया है कली संतरण उपनिषद में कि हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गतिर् अन्यथा इस कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है भगवान की प्राप्ति करने का और वापस भगवान के धाम जाने का। एक ही मार्ग है, हरि का नाम। और हरि का नाम लेने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, दूसरा सब काम करने के पैसे लगते हैं, है ना। हरि का नाम लेने के लिए सिर्फ अपना जीवा चलाना पड़ता है, अपना जीव का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड यू विल सी प्रभुपाद का एग्जाम्पल, जब मैं उसका लेक्चर सुनता हूँ तो इतने अच्छे लगते हैं। प्रभुपाद बोले अगर आपको प्यास लगी हो, बोले मानो आपको बहुत प्यास लगी हो, तो आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे, जल लेंगे। लेकिन आप अगर खाली रटेंगे पानी 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 पानी, आपकी प्यास चली जाएगी? नहीं, क्योंकि पानी और जो पानी वस्तु है उसमें फर्क है। द वर्ड वाटर एंड द सब्सटेंस वाटर इज डिफरेंट, बट द वर्ड कृष्णा एंड रामा इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, बिकॉज गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज एब्सोल्यूट। दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट मीन्स। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दूं। ये मटेरियल वर्ल्ड में 1 + 1 is 2 and 1 - 1 is 0. But in the absolute world, 1 + 1 is still 1 and 1 - 1 is still 1. आप सोचिए कैसा है? That is the absolute world. For example, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर समुद्र के पानी में से अगर एक टीपा पानी निकल जाए तो कमती होगा? तो God is so huge, उसका क्रिएशन इतना ह्यूज है कि उसमें से इतना भी चला जाए कुछ घटना नहीं है। भौतिक संसार में घटता है। दो समुद्र की एग्जाम्पल अलग है, बट सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इस कली में भगवान की ये दया है हम सबके ऊपर कि हमको एक बहुत सरल मार्ग दिया है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, वो किसी वक्त भी ले सकता है। तो गीता का जो ज्ञान है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर समझाए वो मैं जल्दी आपको बता दूं। आई एम नॉट गोना गेट इनटू द डिटेल, बट आई विल टेल यू दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स। फर्स्ट तो गीता तुमको समझाती है क्या कौन है,
क्योंकि हम भूल गए हैं हम कौन है। अगर कोई आपको पूछेगा तुम कौन है, मैं भी बच्चू भाई को पूछूं हु आर यू, बच्चू भाई बोलेगा आई एम बच्चू भाई। अरे बच्चू भाई तो आपका नाम है, बट हु आर यू एक्चुअली, है ना। तो ज्यादातर सबको गलत फहमी क्या है कि हम ये भौतिक शरीर है ना, वी आर दिस मटेरियल बॉडी, बट दैट्स नॉट आवर रियल सेल्फ। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो ताकत मेरे में क्यों आती है बोलने के लिए, क्योंकि जो मेरा रियल सेल्फ है वो अंदर बैठा हुआ है, द स्पिरिट सोल, जीवा जिसको हम बोलते हैं। अगर वो जीवा शरीर से निकल जाता है फिर वो शरीर को तुम लात मारो काट दो कुछ नहीं होगा उसको, है ना। अभी तो खाली चिमटी भी अगर मैं दूंगा तो आप चिल्ला देंगे, बिकॉज द सोल इज सिटिंग देयर, दैट्स द रियलिटी, दैट इज द प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल व्हेन वी आर अलाइव। सो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, वी आर स्पिरिट सोल्स विच आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। भगवान कहते हैं एक और श्लोक में, ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते हैं ये जितने भी अनगणित जीव है इस 3 लोक में वो सब मेरे सनातन सेवक है, दे आर ऑल माय पार्ट एंड पार्सल, दैट्स योर रियल आइडेंटिटी। बट हम लोग ने क्या किया है, भगवान का धाम छोड़ के यहाँ आके खुश रहने की कोशिश करते हैं। कितने खुश रहेंगे? मैं बच्चू भाई को पूछता हूँ, बच्चू भाई को नहीं पूछूंगा, बच्चू भाई आंसर नहीं जानेगा, बच्चू भाई की वाइफ को पूछूंगा। माता जी, very frankly and with humility I'll ask you this question. You have all the money in the world. Are you happy? Happy or you are sometimes unhappy? दुख होता है कि नहीं कभी? जीवन में दुख आता है कि नहीं? Money cannot solve all your problems, isn't it? Because this is the nature of this body. भगवान ने बहुत अच्छी तरह से भागवत गीता में एक और बात बताई है कि जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 4 मुख्य प्रॉब्लम है, उससे बड़े और नहीं हो सकते। और वो 4 प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मां के गर्भ में जो 9 महीने निकालना, वो रियल प्रॉब्लम है। वो तो खाली हम जब बाहर आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ था अंदर। आज तक कोई बच्चा पैदा हुआ है, हंसते हंसते आए हैं भगवान के सिवा, सब रोते आते हैं, बिकॉज यू हैव टू कम थ्रू अ नैरो पैसेज। कैन यू इमेजिन व्हाट स्ट्रेस गोज इन योर हेड? जो जन्म वो एक दुख है, उस तरह मृत्यु भी एक बहुत बड़ा दुख है। कभी कभी हम लोग को अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब शरीर में से जीव निकलेगा ना, तो भागवत में बताया है, इट्स लाइक मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियंस बाइटिंग यू, दैट total collective pain is equivalent to millions of scorpions biting you. और ये जो शरीर है, इसको गीता में बताया है, it's the city of 9 holes या the city of 9 gates. कृष्ण डिस्क्राइब करते हैं शरीर को किस तरह, it's the city of 9 holes or 9 gates. और जीव जो है ये 9 गेट में से कोई भी एक गेट के थ्रू निकलता है। 2 आंखें जो है, 2 nostril, 3, 4 मुख्य, 5, 6, 7 front genitals, 8 and the rear 9. Those are the 9 holes in the body. So soul, जब आप अंतिम समय आएगा तो जीव यहाँ कहीं से निकलेगा। ज्यादातर बताया जाता है कि जो पापी व्यक्ति होता है उसका निचले भाग के शरीर से निकलता है, और जो धार्मिक व्यक्ति है जिसने भक्ति की है वो उचले भाग से निकलता है, और जो एकदम 100% व्यक्ति होता है वो अपना शरीर फोड़ के निकलता है, सर फोड़ के, उसको कहते हैं योगी। जन्म मृत्यु ये 2 सबसे बड़े दुख है, और बीच में दूसरे 2 लगाए हैं भगवान ने, वो है जरा। जरा का मतलब बूढ़ापन, ओल्ड एज। यहां कोई नहीं बोलेगा कि मैं बूढ़ा बनना चाहता हूं, ऐसे नहीं बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं मालूम? यू नो, आई वांट टू लिव टिल 90 years। वो क्यों बोलता है मालूम? और जब वो 25 साल का होता है तो बोलेगा आई वांट टू लिव टिल 90, क्योंकि वो भूल जाता है जब वो 90 का होगा तो 25 साल का नहीं दिखेगा। That he forgets, isn't it? Amazing, isn't it? भगवान ने क्या माया बनाई है। सब कोई नहीं बोलेगा कि मैं जल्दी चला जाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं मेरा शरीर बूढ़ा हो और अलग
अलग प्रकार की बीमारी लगी और मैं दुख, सब बोलते हैं 90 तक जीना है, और वो भूल जाते हैं कि 90 में उसका हाल क्या होगा। सो जरा, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज। ओल्ड एज इज वेरी पेनफुल, very painful. I'm sure we all have someone at our homes who is old. Ask them and they'll tell you. And the last one is vyadhi, which is disease. भौतिक संसार बीमारियों से भरा है। कोई यहाँ बैठा नहीं है जो मुझे कहता है कि सारे जीवन में मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है ना। सो ये जीवन के 4 मुख्य प्रॉब्लम्स है। जब हम वापस भगवान के धाम चले जाएंगे तो हमको ये भौतिक शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। तो जन्म जितु जरा व्याधि नहीं, विल बी इटर्नल, इटर्नल स्पिरिट सोल सर्विंग गॉड। सो हु एम आई, ये पहला समझना चाहिए। दूसरी बात, लोग कितने लोग हैं ऐसे मानते नहीं है। मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, दे डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, बट लेट मी टेल यू, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? डेफिनेटली देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, डेफिनेटली। वो रीइंकार्नेशन की फिलॉसफी पक्का है। ये जो नए नए योनि, सब बच्चे सब योनि में पैदा होते हैं, वो सब कहां से आते हैं? वो इट्स नॉट बीइंग बोर्न नाउ, दे आर टेकिंग अनदर बर्थ, दे वर इन सम अदर स्पीशीज। आफ्टर डेथ, अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव कर्मा, दे आर बोर्न अगेन। दैट इज प्रूफ। तो रीइंकार्नेशन की फिलॉसफी गीता में अच्छी तरह से श्री कृष्ण भगवान ने समझाई है। यू टेक मल्टीपल, आज हम यहाँ मनुष्य देह में सब बैठे हुए हैं, बट हम सब कितने जन्मों में कई जानवर बन गए हैं। So many people. Once I met a person in India when I was studying in India. I met him in Bombay. He had a lot of knowledge. I mean, he's a saintly person. And he told me that you were a lion in your last life. He told me that I was a lion in my last life. तो मैंने बोला थोड़ा सेंस करता है, क्योंकि लाइन के नेक्स्ट लाइफ होती है वो ह्यूमन बींग का होता है, और वो बड़ा पैशनेट होता है मेरे जैसा। So it's there, reincarnation is there, it's a reality, we can see it with our own eyes. आपके घर में बच्चा पैदा होता है, कहाँ था वो बच्चा तुम्हारे घर में आने से पहले? वो कहीं था। He is eternal, he was in someone else's home. You don't know whether he was in animal species, insect species or human species, you don't know. जान के करेंगे भी क्या? प्रभुपाद को बहुत क्रिश्चियन लोग को जब इनिशियली प्रीच किया था तो प्रभुपाद को ये सवाल पूछते थे, प्रभुपाद हम क्या थे पहले जन्म में? What we were? प्रभुपाद बोले, how are you going to benefit by knowing all that? Will you benefit? No. Get on with the business now. इस तरह प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि अगर तुम्हारे घर में अगर आग लगी हो तो आप क्या करेंगे? आग बुझाने की कोशिश करेंगे कि तुम वहां बैठ के स्पेकुलेट करेंगे, ये साली आग लगी कैसे? So what is the point in speculating में लास्ट जन्म में क्या था, क्या किया, इस जन्म में क्या हो? Take advantage of it and move on, isn't it? That's intelligence. Third topic है, how can I balance the material and spiritual aspects of my life? It is a real challenge, isn't it? इस भौतिक संसार में हम सबको किसी न किसी काम तो करना पड़ता है। We have to earn money to support ourselves, our family members. हम सबका शरीर को सपोर्ट करने के लिए पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अनलेस आप साधु बन जाएंगे और भगवान के ऊपर निर्भर होंगे, बट वो बड़ा डिफिकल्ट है ना। सो बैलेंसिंग मटीरियल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो कैसे करना चाहिए? वो गीता में बताया है श्री कृष्ण ने कैसा करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। भगवान ऐसे नहीं कहते, मानो असली बात में बताओ, भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था? तत्व की बात क्या बताई थी अर्जुन को? डिड अर्जुन वांट टू फाइट? अर्जुन लड़ना चाहता था, तो भगवान ने क्या उसको बताया? यू हैव टू डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तुम्हारा जो स्वधर्म है वो तुमको करना पड़ेगा अर्जुन, और तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए तुमको अधर्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एंड जब तुम लड़ोगे तब तुम अपना धर्म का पालन कर रहे हो। दैट इज द रियलिटी। तो अर्जुन क्या, अर्जुन बड़ा साधु बन रहा था, यार ये सबको मैं कैसे मार सकता हूं, सब मर जाएंगे,
तो भगवान ने बताया ये सब तो मर गए हैं, वो निश्चय तो मैंने ले लिया है. आई ऑलरेडी टेकन दैट डिसीजन. यू विल हेल्प मी बाय किलिंग देम. यू विल बी सर्विंग मी बाय किलिंग देम, बिकॉज दीज आर irreligious personalities and I have already taken the decision to kill them. श्री कृष्ण ने उसको बताया. श्री कृष्ण ने उसको उसका विराट रूप दिखाया था. अर्जुन, ऑफ कोर्स, अर्जुन कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं था. अर्जुन वॉज भगवान के साथ लीला करने आया था. बट ही टुक द रोल, ही वॉज रोल प्लेइंग. वो हमारा और तुम्हारा रोल प्ले कर रहा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं है तो उसको ज्ञान दे. तो फिर गीता फिर 5000 साल बाद हम जैसे बद्ध जीव पढ़ेंगे और ज्ञान हासिल करेंगे. तो अर्जुन डिड द रोल प्लेइंग. बट कृष्ण टोल्ड हिम, यू हैव टू डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी. सिंपल. और वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से ही हम आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे. Why would a kind and just God allow suffering? ये सवाल भी बहुत पूछते हैं. Why would a kind and just God allow suffering? अभी इस संसार में हम सब कुछ ना कुछ लेवल का सफरिंग तो होता है. यहाँ पिड़ाता है, वहाँ पिड़ाता है ना. When you go past 70, I say this always to my friends, when you go past 70 and you get up in the morning and no part of your body is paining, then you should thank Lord Krishna. Simple as that, isn't it? So भगवान क्यों हमको सफर कराता है यहाँ? वो नहीं चाहता है कि तुम यहाँ सफर करो. कहते हैं चल मेरे साथ, फटाफट सब मेरे जो नियम है सब पालन कर, भगवान का नाम ले और चल वापस मेरे साथ. यहाँ क्यों सड़ रहा है तू? और हम मानते नहीं है, बड़ा जिद्दी है हम भी. हाउ कैन आई हेल्प दिस ट्रबल्ड वर्ल्ड? जो भगवान का भक्त होता है, वैष्णव, वो कोशिश करता है दूसरे जो जीव है उसको सही मार्ग दिखाए, जिस तरह हमारे प्रभुपाद ने किया था, है ना. प्रभुपाद ने सारा अपना जीवन दे दिया था. कुछ नहीं था उसके पास. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज थिंक इन माई हार्ट, when will that day come when the Indian government will say he was the real ambassador for India. He took the Bhagavad Gita and the Vedic scriptures to all parts of the world. Because what more can India give to rest of the world than the Vedas, you tell me? That's the real gift. हमारे पास real gift है. And Prabhupada did that. Finally, does my life run a predestined course or do I have choices? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है. कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, कि मेरे पास चॉइस है. कोई उत्तर दे सकता है? लेट्स समवन ट्राई, लेट्स सी. प्रभु जी, आप इज योर लाइफ प्रीडेस्टिन्ड? ऐसा ही होने वाला है कि तुम्हारे पास चॉइस है. हाँ, यू हैव अ चॉइस. कृष्ण सेज यू हैव अ फ्री विल. चॉइस है बराबर. आपके पास आज शाम को चॉइस था कि आप घर में बैठ के टीवी देखें या राधा गोलोक बिहारी टेम्पल में आके मेरा बोरिंग लेक्चर सुने. बट आपने सही डिसीजन लिया, है ना. चॉइस था आपके पास. यू हैड द चॉइस एंड यू गेन सो मच. कृष्ण विल ब्लेस यू फॉर लिसनिंग टू भागवत गीता. सो चॉइसेस आर देयर. डोंट थिंक एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड. You can change your life. क्या होता है अकाउंटिंग टर्म्स में समझाता हूं. You have an opening balance sheet when you come with your past karma. But what you do in this life will change that balance sheet. And if you have a negative balance sheet, you can make it an absolutely positive balance sheet. It's up to you. That's your choice. Simple. So I think time is up. 1 घंटा हो गया है. So अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ तो आपने पेशेंटली मेरा लेक्चर सुना. मैं तो कोशिश कर रहा था आपको कुछ बताऊं. इतना सारा बताना है कि एक लेक्चर में इट्स डिफिकल्ट. बट जैसे जैसे भगवान ने मेरे दिमाग में डाला मैं बोलता गया. और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं सोच रहा था आज मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं. तो मैं फिर जब मंदिर आया तो मैं प्रभुपाद के पास खड़ा रहा
और मैंने बोला प्रभुपाद तुम जो चाहो वो मुझे बुलाना। He did it. That's how it is. Thank you very much. किसी के पास कोई भी एक प्रश्न हो, एक प्रश्न मुझे अच्छा लगता है, एंड डोंट बी शाय। अर्जुन के पास तो बहुत सारे प्रश्न थे, तब तो गीता बोली गई है ना, सारा दुनिया का फायदा हुआ था। तो वन क्वेश्चन आई विल टेक फ्रॉम एनीवन, प्लीज बी bold enough to ask the question and I will try to answer. You have something in your mind, tell me. No? मौत से कौन डरता है मालूम? जो नहीं जानता है कि उसकी मंजिल क्या है आगे, है ना। लेकिन जो जानता है कि मेरी मंजिल कहाँ है अंत में, वो डरेगा, तो राह देखेगा उसकी। Isn't it? हमारे इस्कॉन में मैंने मेरे बहुत सारे संगति गुरु भाई गुरु बहन हैं जिसने दुनिया छोड़ी है, मैं बताऊं, लेकिन वो हंसते हंसते गए थे क्योंकि वो भगवान के